Hey guys, welcome back. So this is our day 29 of 50-day DSA in C++ by Logical. Okay, and our today's topic is bit manipulation. ठीक है, तो we are going to start. First of all, we have to know about the bitwise operator. Okay, this is our bitwise operator. Okay, like and or not, your and left shift, and last one is right shift. We must have to know about this before jump to the topic. Okay, so first thing, talk about the AND operator. First is bitwise AND. Okay, symbol is this one. Okay, that means if we have two number like x and y, okay, 0 0 1 1 0 1 0 1, okay, and our final answer will be z. That will be x dot y. And means x dot y. Okay, dot means we can multiply just for understanding, like 0 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 1 into 1 1. We can remember like that. Okay, so main thing is here is if both is 1, then it will become 1 in answer. That's it. In AND operator, if x and y both are 1, then our answer will be 1. Okay, uh, just take an example. Just example is x is 5 here, y is 7 here. Okay, after we have to compute the x and y. Okay, that means we have to compute x and y. Okay, just solve this. Step 1, change it to the binary. In binary representation, 5 is 101, 4 7 111. We have to take end now, 5 and 7, that means 101 and 111. Here we have table here. Okay, by the help of table we can compute 1 1 1 1 1 here, 1 0 1 0 1 0 here, 0 again, 1 1 1 1 1. Okay, what is this? This is our 5. This is our 5. So 5 and 7 answer will be 5. Okay, we can run this. Okay, first of all we have a compiler. Okay, take two integer, int x equal to 5, y equal to 7. Okay, after that we have to compute z equal to x and y. Okay, after that see out this, see out z. Wait a second, and that's it. We can just run there here. This is our 5 answer. Okay, तो ये समझ आया. In AND operator you have to compute like this. Okay, first change into the binary. ये मतलब हमें नहीं करना, don't worry, we don't have to do this. This will manage by our system. Okay, this is our bitwise AND. That means bitwise AND. This symbol gives, like, we have integer value x and y. These two are integer, int. Okay, that means decimal value, decimal. But our operator is bitwise. This is our bitwise operator. Okay, if you have bitwise operator, that means it convert into the binary, then solve it. Okay, तो एंड तो समझ आया तुम्हें, बस इतना नहीं समझना, ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए नहीं है ये. बस तुम ये समझो कि 1 1 1 होता है, कहीं काम आया तो, और बाकी जगह 0 होता है, एक्स डॉट वाई होता है. ठीक है, ये टेबल याद रखना है बस. ये है इंपॉर्टेंट, इसे बोल सकते हैं, स्टार मार्क कर दो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. सेकेंड अपने पास और ऑपरेटर, और इसका साइन है ये. ओके,
जैसे मान लो इस बार तुम्हारे पास एक्स है, वाई है, जेड दिया हुआ है। जेड क्या होगा, एक्स, और मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है, ये तुम्हारे पास 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब देखो तुम्हारे पास आंसर क्या बनेगा। ऐड करना है, वहां इंटू था तो देखो कोई भी जीरो था तो जीरो बन जा रहा था। यहाँ ऐड करना है, 0 0 0 बोल सकते हैं, 0 1 1 बोल सकते हैं, 1 0 1 बोल सकते हैं, 1 1 1 बोल सकते हैं। ये टेबल है, बस टेबल याद कर लो समझने के लिए कि एंड क्या होता है, सॉरी, और क्या होता है, ऐड करना होता है। या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई, तो दोनों में से एक ले लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, लास्ट वाले पे ही ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें क्या, एक्स था 5, डेट मीन्स 1 0 1, एंड वी हैव अनदर इज 5 7, 7 इज 1 1 1। वी हैव टू कंप्यूट दिस 1 0 1 1 1 1। वी हैव टू टेक और ऑफ द दैट थिंग्स, दैट मीन्स go to the OR table, 1 1 1 1 gives us 1, after that 0 1 0 1 gives us 1, and 1 1 1 1 again gives us 1. That means this is 1 1 1 na, this 1 1 1, this in decimal we can write it 7, means our answer will be 7 na. So here we compute just OR operator. Okay, bitwise OR, our answer will be going to not 5, it will become 7, 7, right? After that we have 7 or operate. Yeah, understand? So go to the next one. Third is like if we have a not operator. Not, that means if we have x, this is our not x, this is sign of not. Okay, this is sign of not. If we have 0, it become 1. If we have 1, it become 0. Okay, that means we just compute here like x equal to 5. That means output will be not 5. That will be second complement. Second complement. ये तो तुम्हें आता होगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, बस चेंज फ्लिप कर देंगे 0 से 1, उसके बाद +1 कर दो, सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास 5 है तो नोट 5 क्या आ जाएगा, कुछ माइनस में चला जाएगा। जैसे 5 है तो अगर 5 5 नोट 5 हुआ, फिर +1 करना है हमें, तो नोट -6 बोल सकते हैं। ठीक है, वेट हम देखो कहाँ थे हम, ये नोट, तो नोट समझ आ गया। अगर हम नोट अगर 5 का निकालते हैं तो ये -6 आ रहा। ठीक है, जैसे जैसे 5 है तो इसका नोट क्या होगा, -5, +1 करेंगे, -6 पे चला जाएगा। मतलब इसे बाइनरी में वो तुम करके देख लेना। जैसे हम अगर 5 का निकालें तो जेड हम बोल देते हैं, अभी जेड है अपना नोट ऑफ एक्स। ओके, 5 का नोट निकाल रहे हैं, -6 आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं थर्ड। अब है अपने पास फोर्थ वन। फोर्थ है जोर ऑपरेटर। जोर है ये, तो ये देखो जोर अगर तुम पढ़े होगे मैथ में तो तुम्हें पता होगा, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, जोर ऐसे दिखाते हैं, एक्स प्लस ये वाला, मतलब एक्स वाई प्लस वाई एक्स, लाइक दैट, एक्स वाई वाई एक्स, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तुम देख लेना। बट ये देखो जो अभी काम का है हमारा 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये नोट्स योर, मतलब ऐसा ही कुछ होता है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें जोर में क्या होता है, एक भी 1 है, सिर्फ एक 1 है तो 1 करो। ठीक है, तो 0 0 0 है, एक 1 है तो 1 कर दो, एक 1 है तो 1, दो 1 है तो 0 होगा। ठीक है, एक 1 है तो 1 करना है हमें, आई बात समझ, बस ये दोनों याद रखना। या फिर सेम है तो 0 बोल दो। ठीक है, जोर हो गया, नोट हो गया, इतना कुछ हो गया। तो मेन मेन चीज़ भी बता दो, फिर लेफ्ट और राइट से भी बताता हूँ। पहले हम क्या किए थे, एंड, वेट अ सेकेंड, एंड और नोट एंड जोर, 1 1 1 होता है। एक चीज़ याद रखो, इसमें 0 0 0 होता है। ठीक है, नोट में क्या होता है, 0 का 1, वाइस वर्सा। ठीक है, जोर में क्या होता है, अगर सिंगल 1 है, सिंगल 1, इट बिकम 1, और या फिर सेम सेम,
सेम सेम बिकम जीरो। ये शॉर्टकट मान लो, ट्रिक याद करने का, ये बोल सकते हो। ठीक है, वन वन है तो वन होगा, यहाँ जीरो 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 होता है, नोट नोट में जीरो का बार ये तो आ जाएगा, ये तो इजी है। जोड़ में क्या होता है, सेम है तो जीरो बोल दो, या फिर एक वन है तो वन बोलो। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं वो आगे। आगे अपने पास लेफ्ट शिफ्ट, फिफ्थ, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट समझते हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अपना ये साइन है ऐसा, लेफ्ट शिफ्ट दो बार। ठीक है, एक होता है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट में ऐसे जाता है। ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। क्या है, मान लो एक कुछ है तुम्हारे पास नंबर, अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं वन टाइम, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब तुम समझो इनटू होता है, ये होता है टू का मल्टीप्लाई, टू इंटू यहाँ जो भी है। आई बात समझ, जैसे तुम्हें मान लो ए दिया हुआ है, ठीक है, ए ऐसे वन है, इसका सीधा सा मतलब है एक को क्या करना है, इंटू करना है, कैसे, टू टू दावर ये जो भी है वन से। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ हो ए थ्री, इसका सीधा सा मतलब है ए इंटू करना टू टू दावर थ्री से। लेफ्ट से मतलब इंटू टू होता है, और जितना बार करना है उतना की पावर में। ठीक है, तो क्या हुआ, ए इंटू टू टू दावर थ्री। आई बात समझ, अगर हम ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल निकाल के बता, ठीक है, ए मान लो तुम्हारे पास है कुछ, ए दिया हुआ एग्जाम्पल, ए दिया हुआ है फाइव, फाइव होता है वन जीरो वन। ओके, फाइव का लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी ये तो राइट शिफ्ट हो गया, फाइव का लेफ्ट शिफ्ट ले लो वन, डेट मीन्स फाइव इंटू टू टू दावर वन, ये क्या होता है दस। ठीक है, तो ये इसका ये बनेगा हमें दस, तो लेफ्ट शिफ्ट का सीधा सा मतलब क्या बन रहा है, दस। दस को कैसे लिखेंगे, आठ और तो दस। ठीक है, टू थ्री, ये हुआ दस तुम्हारा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या किए, पहले था अपने पास अपने पास था वन जीरो वन, हम बनाए क्या इसको, इसको बनाना वन जीरो वन जीरो, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, एक जीरो यहाँ बढ़ गया। अगर यही हम अभी हम ये करके दिखाऊं, फाइव ये। ठीक है, वेट अ सेकेंड, यहाँ रहा, हम यहाँ बस ड्राई रन करने के लिए रखे हैं। क्या रखे थे, फाइव रखे थे एक्स। ठीक है, और कुछ रखे थे, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही ना, ओके, सिर्फ फाइव चाहिए। और हमें जेड क्या निकालना है, हमें जेड निकालना है फाइव, मतलब एक्स का लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम वन। ठीक है, वो अपना जेड है। अब आंसर देखते हैं क्या आ रहा, दस आ रहा। ठीक है, इंटीजर पे दस आ रहा। समझ आया दस कैसे आया, ये हम निकाल के बताएं तुम्हें। ठीक है, और बाइनरी में अगर देखो तो एक पर शिफ्ट किए तो एक जीरो आया। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, हम लेते हैं सेवन, सेवन होता है वन वन वन, इसको करते हैं लेफ्ट शिफ्ट, सेवन लेफ्ट शिफ्ट टू से करते हैं। ठीक है, वन से तो कर ली, टू से करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, सेवन इंटू टू पावर टू, डेट मीन सेवन इंटू फोर, यानी कि सच बात है 28। ठीक है, 28 बना, लेफ्ट शिफ्ट ना, 28 बन रहा। तो देखो वन 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 था, 28 के लिए देखो क्या लिखेंगे हम, अगर इसे हम लिखना है बाइनरी में, टू से चौदह जीरो, दो से सात जीरो, दो से तीन एक, अगेन दो से एक एक, एक तो रह गया, तो हम ऐसे लिखेंगे वन 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 जीरो जीरो। ये बन रहा 28 के लिए क्या बन रहा, वन 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 जीरो जीरो, तो अपने पास था वन 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 था, अब अपने पास आंसर क्या बना, वन 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 जीरो जीरो। मतलब ये देखो दो शिफ्ट मारे तो दो जीरो इधर आ गया, तो मैं समझ आ रहा है? ये मतलब लिखा हुआ ऐसा होगा, जीरो 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 जीरो, बहुत बार जीरो इधर, तो बस लेफ्ट शिफ्ट मारो तो इधर से उठ के इधर जा रहा। ठीक है, अगर हम बाइनरी में ही देख रहे हैं, और देखते हैं एक दो, ऐसा देख लो कि बस तुम्हें मतलब ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए, क्योंकि आगे बहुत सारा ऐसा काम आएगा, तुम्हें बस सोचकर खुद से करना होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 11 का, 11 तुम्हारा क्या होता है, 11 हमें बाइनरी में लिख लेते हैं, टू से फाइव बार में वन गया, टू से टू बार में वन रह गया रिमाइंडर, टू से वन बार में जीरो रह गया। ये हम ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, बाइनरी में होगा वन जीरो वन वन। इसको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। अगर हमें क्या करना है, 11 लेफ्ट शिफ्ट वन करना है,
11 लेफ्ट शिफ्ट 1 करना है तो क्या 11 10 11 एक जीरो यहाँ आ गया। 11 लेफ्ट शिफ्ट 3 करना है तो क्या होगा 1 1 10 11 11 के लिए 3 बार लेफ्ट शिफ्ट 1 2 3 इधर आ गया। ये करके देखे क्या, ये क्या बन रहा है ये देखो बस। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, मतलब 4 2 8 10 16 32 64 64 प्लस 2 2 4 2 8 16 प्लस 8, डेट्स इट। 8 से 14 4 18, ओके 6 1 7 1 8 88 बन रहा है। ठीक है, 11 का लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 3 तो 88 बन रहा। 11 का लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम 3, क्या बन रहा 88, सही आ रहा आंसर। तो हमें ये तो आ गया। अगर हम बाइनरी में ही काम कर रहे हैं तो हमें पता है लेफ्ट शिफ्ट का मतलब, लेफ्ट शिफ्ट का सीधा सा मतलब इधर इतना जीरो ले आओ, मतलब इधर से ले आओ। अगर निगेटिव होता तो 1 जाता ना, अगर हम निगेटिव का देखते। ठीक है, अगर हम निगेटिव का देखते तो इधर 1 जाता। ये देखते हैं एक निगेटिव का देखे क्या, जैसे है अपने पास ले लेते हैं -2, तो 1 1 1 1 1 होगा। और 2 के लिए लास्ट में 1 होता है 1 0। ठीक है, इधर 1 1 होगा। तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट मार रहे हैं -2 के लिए 1 से, तो एक 1 इधर आना चाहिए। डेट मीन्स ये क्या बन जाएगा 2 और 3। -2 के लिए देखिए तो क्या बनना चाहिए 3 बनना चाहिए। देखते हैं, माइनस का तो कंफर्म नहीं है। -2 के लिए अगर हम देखें, -2 के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट मार रहे हैं 1 से, क्या बनना चाहिए -4 बन रहा। अच्छा इंटू 2 हो रहा ना, अगर ये देखो इंटू 2 हो रहा। ठीक है, तो ये कैसे निकल होगा -2 है अपना, -2 क्या लिखा होगा 1 1 ऐसे। ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट होता थोड़ा होता है। ठीक है, ये तुम देख लेना खुद से सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकाल के। ठीक है, ये राइट तुम कर सकते हो माइनस वाले। और क्या रह गया अपना लेफ्ट शिफ्ट का मतलब समझ यार, लेफ्ट शिफ्ट का सीधा सा मतलब है लेफ्ट शिफ्ट। देखो हम माइनस वाले में नहीं जा रहे हैं अभी। लेफ्ट शिफ्ट में क्या है, इनटू करना है 2 to the power जितना भी लेफ्ट शिफ्ट करना है ये मान लो। ठीक है, ये करना है इनटू करना है 2 to the power जितना भी होगा लेफ्ट शिफ्ट करना। ये हो गया। अगर हम बाइनरी में देखें तो बस यहाँ जो एक्स है इसके आगे 0 आ जाएगा। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए शायद 1 आए, ये तुम देखना। तो बेसिकली मतलब तुम लेफ्ट शिफ्ट का क्या समझे 2 into होता है। ठीक है, अब हम राइट शिफ्ट समझते हैं। अपने पास है राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट क्या होता है, इसमें हम डिवाइड 2 करते हैं। सीधा सा मतलब समझो, जैसे तुम्हारे पास है 5 का राइट शिफ्ट करना है 1 की। ठीक है, राइट शिफ्ट मतलब 5/2 to the power 1, यानी कि 5/2, दैट मीन्स 2। आंसर आना चाहिए 2। देखें आंसर आना चाहिए यहाँ 5 के लिए 2 आना चाहिए। देखते हैं, और सॉरी ये तो लेफ्ट शिफ्ट है, हमें इसे राइट शिफ्ट में चेंज करना होगा। ये रहा। ठीक है, राइट शिफ्ट 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसमें बाई करना है, उसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई राइट में बाई। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे बाइनरी में देखें, बाइनरी में क्या हुआ होगा, बाइनरी में था 1 0 1 था। ठीक है, इसको हम क्या किए राइट शिफ्ट किए हैं और ये बना है 2। डैट मीन्स अगर हम राइट शिफ्ट किए हैं, ठीक है, इधर से हमारा क्या आता है ऐसे 0 इधर, इधर से हम ये 1 हटा दें अगर, तो अपना 2 कैसे बनेगा। 2 बनाने के लिए सिर्फ यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम राइट शिफ्ट में इसको इधर से इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 गया इधर, 1 इधर गया, तो इधर जाकर 1 होगा कहीं पे ऐसे, इधर तो 0 0 0 होगा, 1 0 बचा, तो 1 0 2 रहता है। एक और करके देखते हैं यही हो रहा है या नहीं। इसके लिए अगर 7 का हम देखें, 7 का 1 1 1 होता है। अगर राइट शिफ्ट हम किए एक एक से, तो ये 1 चला जाएगा तो 1 1 बचेगा, यानी कि 3। 7 का अगर 3 आता हो तो यही होगा। 7 का अगर 3 आ जाए, 7 का आ जाए 3,
7 का 3 आ रहा है, मतलब यही है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, एक इधर से चला जाएगा, ठीक है, इसे तुम गायब कर दो, ठीक है, शिफ्ट हो गया, मतलब ये गायब हो रहा है, लास्ट वाला बिट गायब हो रहा है राइट शिफ्ट से। तो तुम्हें ये राइट शिफ्ट का बहुत काम आएगा आगे, लास्ट वाला बिट तुम्हें गायब करना है तो सीधा राइट शिफ्ट मार देना, ठीक है, राइट शिफ्ट मार दो, ये गायब, ठीक है। तो इतना समझ आएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे डिस्कस करेंगे, ये मैं पहले इतना बता दिया तुम्हें। तो कितना टाइम लिए हम इसे बताने में, 20 मिनट में तुम्हारे ये बिटवाइज ऑपरेटर हो गया कंप्लीट। बिटवाइज ऑपरेटर एंड और नोट जोर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये खत्म, ठीक है। बिटवाइज अपना कंप्लीट, ये होता है एंड ऐसे, ये होता है और, ये नोट होता है ऐसे, जोर होता है ऐसे, लेफ्ट शिफ्ट का सेम है, राइट शिफ्ट का भी सेम है, ठीक है। इतना कुछ समझेगा तो हम क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, तो हम स्टार्ट करते हैं कि, तो क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, डीएसए सीट जो हम खुद बनाए हैं बाई लॉजिक एंटर, ठीक है। हम यहाँ से प्रॉब्लम करेंगे, अपने पास है टोटल 15 क्वेश्चन इस पे, बेसिक है। बाद में मुझे अच्छा लगा तो कुछ और ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छे लेवल की क्वेश्चन, अभी ये बहुत बेसिक है, बेसिक टू मीडियम बोल सकते हैं अभी सीखने के लिए, बेसिक टू मीडियम लेवल, ठीक है, इजीली हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो पढ़े हैं उसी से होगा। अभी पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्या लॉजिक लर्न पे, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें लिंक, डीएसए सीट पे जाना, ठीक है। यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं हम ढूंढने से अच्छा, हमें करना है बीट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन, अपने पास 15 है टोटल, ठीक है। पहले तो हम बीट वाइज एंड का देखते हैं, हमें एंड पता है कैसे होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड अगर हो तो देख लेते हैं। अपने को निकालना है एक रेंज के बीच में, जैसे 5 और 7 के बीच में एंड करना है, ठीक है। एंड लेफ्ट एंड राइट रिटर्न सबका निकालना है, जैसे 5 और 7, अपने पास प्रॉब्लम क्या है, एक्स क्या है 5, वाई क्या है 7, तो हमें 5 से 7 तक का सबका क्या निकालना है, एंड निकालना है। तो पहले 5 का, 6 का, 7 का, इन तीनों का एंड निकालना है, ठीक है, एंड एंड। तो अगर हम ऐसे करें, 5 के लिए क्या आता है 101, 6 के लिए आता है 110, इसके लिए 111, यही बना 5 6 7। अब अगर हम निकालें ऐसे, इन दोनों का 5 और 6 का निकालते हैं 101, एंड निकालते हैं 110, तो ये क्या आएगा, एंड में क्या होता था, दोनों 1 है तो 1 कर दो, दोनों 1 है तो 1, बाकी 0। एंड अब करना है इसको 7 से, 111, 0 0 1, दोनों 1 है तो 1, तो ये क्या आया, दोनों ना 4, तो आंसर आ रहा है 4 अपना, ठीक है। देखें आंसर क्या है 4, ये आ गया। लेफ्ट 0 राइट 0, तो इसके लिए तो 0 आ गया, इसका देखना नहीं है। एक है अपने पास 1 से लेकर के, ये इंट मैक्स है शायद, ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू है, तो इसमें शायद हमारा टाइम लिमिट आ जाए, जिससे हम करने वाले हैं। देखो हम क्या करने वाले थे, एक क्या करेंगे हम सोच रहे हैं पहले इसको ले लें, इसका एंड कराएं इसके साथ। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखो अगर हम एक बार ऐसा कर लो, जैसे 101 है, ये देखो 5 है, 101 के साथ ही एंड करा दिए, तो ये क्या बनेगा 1 0 1, सेम रहेगा। अगर 111 है, इसको एंड कर दो 111 सर 111 ही रहेगा। 110 है तो इसको एंड कर दो 110 के साथ, ये 0 1 1 रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, सेम के साथ कराने पे सेम रहेगा, तो हमें दिक्कत नहीं है, तो हम एक ये ले लेंगे और इसको जोड़ करा देंगे इससे इससे इससे, एक फोर लूप चला देंगे इसके लिए, दैट्स इट, करें। बस ये है कि ये जो है इंड मैक्स वाला, उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टाइम लिमिट आ जाएगी शायद, करें। पहले हम क्या लेंगे, इंट आंसर लेते हैं, आंसर को ले लेते हैं पहले हम लेफ्ट वाले को, ठीक है, और सबका निकालेंगे वाइल, जब तक जो लेफ्ट है और लेस देन इक्वल टू राइट नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। क्या करेगा ये, आंसर में क्या करेंगे, हम एंड लेते जा रहे हैं किसके साथ, लेफ्ट के साथ, और लेफ्ट को आगे बढ़ाता हूँ, लेफ्ट प्लस प्लस, दैट्स इट। और यहाँ से रिटर्न कर दो आंसर को। देखो कुछ केसेस चलेंगे, ये केस फट जाएगा यहाँ, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये लेफ्ट से लेकर के कहाँ तक चल रहा है, लास्ट तक, यानी कि इंट मैक्स तक बहुत बड़ा वैल्यू हो गया, ठीक है। देखो अपने पास क्या है, लेफ्ट राइट कहाँ तक जा सकते हैं, इंट मैक्स तक, तो इतना तुम्हारा कितना चला गया, वैल्यू समझ रहे हो। चलो रन करके देखते हैं,
देखो टाइम लिमिट आ गया इसके लिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसे टेस्ट केस खुद से लिख कर दिखाया, ये तो चल जाएगा। इसके लिए अगर चलाना हो तो इसके लिए चल जाएगा। टाइम लिमिट आ रहा, हम एक टेस्ट केस चलाना चाहें अगर, इसे अभी हटा दें अभी के लिए, और ये टेस्ट केस और ये टेस्ट केस चलाएं, तो इन दोनों के लिए तो चलना चाहिए। देखो 5 7 के लिए चल रहा, 0 0 के लिए चल रहा है। अगर हम इसे चेंज करना चाहें, ठीक है, हम इसे एक और एक टेस्ट केस ऐड करते हैं। ठीक है, टेस्ट केस अपने पास 51 से 700 है, इतना पे चलेगा यानी। 51 से 700 तक भी चल रहा। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें बस वो वाला केस हैंडल करना है जो इंट मैक्स वाला था। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए दूसरा मेथड, देखो बेसिक तो समझ आ गया क्या करना था, हमें सबका एंड निकालना है, हम पहले देख चुके हैं कैसे निकलता है। तो इसे हटा दो, हम लिखेंगे ऑप्टिमाइज तरीका। देखो एक हम ले लेंगे, जैसे यहाँ से आते, तुम्हें राइट शिफ्ट का मतलब पता है, या राइट शिफ्ट नहीं भी मारे तो अपना काम बन जाएगा। देखो लेफ्ट था और राइट है, लेफ्ट है मान लो 1, ये है 5, 1 से 5 तक का निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब तक 5 से स्टार्ट करेंगे हम पीछे जाना। देखो वाई, जब तक लेफ्ट ओवर राइट नहीं हो रहा, राइट है, इसमें राइट है, तब तक चलते रहो। क्या करेंगे, राइट का एंड हम निकाल रहे हैं किसके, इससे जस्ट पीछे वाले से, पीछे में निकालते जाना। तो राइट -1, या फिर लेफ्ट से लेफ्ट +1 ले जाते हैं आगे। ठीक है, बस एंड निकालते जाएंगे सबका। जैसे 5 का, 5 का एंड निकाले, 5 - 1 के साथ, 4 के साथ, 5 का 4 का निकल गया, फिर क्या होगा, ये राइट क्या होगा, 4 हो गया, तो 4 और 3 का निकला होगा, 3 2 1, ऐसा सारा निकल के आंसर में स्टोर हो गया। तो राइट को हम रिटर्न करा देंगे, डेट्स इट। या फिर लेफ्ट को भी करा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं वाई। ठीक है, जब तक जो लेफ्ट है अपना लेस देन राइट है, क्या करना है हमें, राइट को एंड लेना है, किसके साथ, उसके जस्ट पीछे वाले के साथ, राइट -1 के साथ। अगर लेफ्ट लेते हो तो लेफ्ट +1 के साथ लेना होगा, रिटर्न कर देंगे राइट को, जो भी आंसर। डेट्स इट। आप रन करें अगर, तो ये केस तो अपना वाला था। ठीक है, ये टेस्ट अपना था, हमें ये लेना है 1 से लेकर के, इस पे चला कर देखते हैं हमें। ठीक है, 1 से कहाँ तक चलना है, यहाँ तक। ठीक है, आप रन करते हैं, ये चल गया, मतलब अपना चल जाएगा सारा ही। एज केस तो यही था कि मैक्सिमम तक पहुंच रहा, ये चल गया 0 वाला। चलो सबमिट कर लेते हैं। एक्सेप्टेड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हम कर लिए। ठीक है, बिटवाइज एंड हो गया। अब और का क्वेश्चन एक, और में क्या, बिटवाइज ऑपरेटर यूजफुल व्हेन यू वांट टू 3 पॉजिटिव इंटीजर है ए बी सी, हमें परफॉर्म करना है। डी इक्वल टू ये है, ये है, ये है, ये है, ये जोर है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रिंट करना है सबको। ये तो बहुत ईजी है, पहले से भी लिखा हुआ अपने पास। ठीक है, ये देखो बहुत ईजी है, हमें बस यही बस जाकर पुट भी कर देंगे तो अपना काम बन गया। ये डी क्या है, ए जोर ए, ई क्या है, ई जोर बी, एफ क्या है, ए एंड बी, सी क्या है, अरे जी क्या है, सी और ए जोर ए क्या है, ए जोर ए हम निकाल के रख चुके हैं डी में, तो यहाँ हम ऐसे कर देंगे, या फिर पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बस एच क्या है अपना, नेगेशन ऑफ ई, तो एच जब एच कर लेते हैं ना, यहाँ एच भी लिख सकते हैं, एच इंट एच इक्वल टू नेगेशन ऑफ ई। ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे एच। ठीक है, तो हम डी प्रिंट करा रहे हैं, ई प्रिंट करा रहे हैं, एफ जी एच सारे प्रिंट कर रन करें। एक सेकेंड, एच के पास कुछ दिक्कत, डी एल
सी आउट। अच्छा हाँ, यहाँ सेमी कॉलन। चलो रन करते हैं। चल गया। देखो कुछ किए नहीं हम, बस और समझने के लिए था, लेकिन यहाँ सारा ही ऑपरेटर दिया हमें। एंड कैसे निकलता है, जोर हम पीछे भी सारा बता कर आए हैं। ठीक है, जोर कैसे निकालते हैं, एंड कैसे निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, नेगेशन कैसे निकालते हैं। डेट्स इट। सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो और में तो कुछ था नहीं जान। ठीक है। एंड में थोड़ा तो था कि हमें ऐसे निकालना है। ठीक है। और भी हो गया। नेक्स्ट अपने पास जोर। जोर के लिए देखते हैं क्या है। अपने पास दिया हुआ है डेसिमल दिया, 10 डिजिट। जीरो। ओके, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। वन टू। वन के लिए, वन टू के लिए, हाँ ये ठीक है। बीट मैनिपुलेशन एंड और जोर टू परफॉर्म तीन ऑपरेशन। तीन चीज यूज करें, एंड और जोर, इसमें तीनों यूज कर लिए। पहले हम देखो एंड सीखे, फिर हम और जब सीख रहे थे हम सब कुछ देख लिए। अब जब जोर सीख रहे हैं तो इसमें तीनों यूज आ रहा, मतलब इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एंड तो पता है हमें, और भी कैसे निकलता है ये भी पता है, जोर भी कैसे निकलता है ये भी पता है। ठीक है। उसके बाद देखो हमें आंसर क्या परफॉर्म करना है, ये प्रिंट द करेक्ट आउट। बस हमें ये परफॉर्म करना है। तो ये तो हम यहीं से उठा के लिख सकते हैं। हाँ, कुछ था नहीं, बस तुम्हें ऐसे थ्योरी समझने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया। ठीक है। हमें क्या करना है, मान लो इंट एक आंसर ले लेते हैं, आंसर में हम उठाकर इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। डेट्स इट, इतना काम था। यहाँ सी आउट करा दो आंसर। डेट्स इट। सबमिट कर लेते हैं सीधा। ठीक है, तो ये तो हम कर चुके थे, बस ये था कि जोर का तुम्हें मतलब समझ आ जाए। सबमिट हो रहा। चलो हो गया। ओके। नेक्स्ट। तो ये तीन तो हमारा पढ़ा हुआ था। अब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट है, एक और प्रॉब्लम है जो पहले से किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब पता है, इनटू करना। राइट शिफ्ट डिवाइड करना। ये भी लिखा हुआ है पहले से। तो हटा ले क्या, हम एक बार वापस से लिखे, या फिर छोड़ो, जब है ही तो क्यों ही लिखना हमें। ठीक है। अपने पास क्या, लेफ्ट शिफ्ट निकालना है किसी का। ठीक है। रिजल्ट है अपना ये, रिजल्ट इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू नम पोजिशन। ठीक है, जितना भी लेफ्ट शिफ्ट करना बता दे। और क्या है रिजल्ट में, ओरिजिनल वैल्यू नम पोजिशन। करना क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड। हमें दिया हुआ है, देखो मूविंग द लेफ्ट वाइज नंबर पोजिशन। ठीक है, पोजिशन दिया हुआ रहेगा, उतना बार कर चला लेंगे हम। ठीक है। रिजल्ट में क्या आएगा, ओरिजिनल वैल्यू, और इसको जितना से लेफ्ट शिफ्ट करना है वो। ठीक है, तो यहाँ अपना निकल गया रिजल्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो निकल गया, चलो बात ठीक है। राइट के लिए सेम। तो टास्क अपने पास एन एल आर है, तीन चीज़ें। फर्स्ट, राइट शिफ्ट एन। पहले फर्स्ट जो एन है उसको राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, आर पोजीशन से। एन को राइट शिफ्ट करना है आर पोजीशन से। ठीक है। फिर उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है एल पोजीशन से। फिर उसको इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है एल पोजीशन से। इजी है, कुछ तो था ही नहीं। देखो अगर हम 7 टू 2 है ना, एक बार हम खुद करके देखते हैं हम। 7 टू 2 एन एल आर। एन को क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है आर से। ठीक है, इसको क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है एल से। डेट मीन्स 7 को राइट शिफ्ट करना है 2 से, देन लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं। 7 को अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो बाई 2 टू द पावर 2। ओके। 7/4 डेट मीन्स 1। 1 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 डेट मीन्स 4। आंसर विल बी 4 हेयर। सो लेट्स चेक इट। 4। इजी है, कुछ था इसमें नहीं। तो इसको ये तो लिखा हुआ है पहले से, हमें सबमिट करते हैं सीधा। ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट डन। अब देखो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना। ठीक है, थोड़ा ये हमें बहुत काम आएगा आगे। बाइनरी से हमें डेसिमल में चेंज करना है। क्या, बाइनरी टू डेसिमल्स।
ठीक है, मान लो बाइनरी में दिया हुआ कुछ नंबर 1011, ठीक है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। सीधा सा मतलब है राइट से इधर जाओ, ठीक है, राइट से यहाँ जाएंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ठीक है, इतना कुछ होगा। हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हम राइट से स्टार्ट करेंगे चलना, ठीक है, यहाँ से। तो इसको एक मान लो स्ट्रिंग में दिया हुआ है 1011, ये इंडेक्स है 0123, तो लास्ट से आई यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, पावर एक है, पावर स्टार्ट करेंगे 0 से और पावर बढ़ाते रहेंगे। यहाँ के लिए पावर 0 है, पावर यहाँ के लिए 1 है, पावर 2 है या पावर 3 है। आई बात समझ? तो क्या करेंगे, और इसको आंसर में रखते जाएंगे बस। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें लेना है आई, तो एक हम फोर लूप चला देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा है अपने पास काम, यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डेसिमल में चेंज करें, इंट आंसर या डेसिमल बोल लेते हैं, डेसिमल अभी 0 है। एक और लेते हैं पावर, पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एक फोर लूप चला रहे हैं, जो भी इसका जो दिया होगा, क्या दिया हुआ देख लेते हैं एक बार, ये हटा लो, अब तो लिख लिख के देखना होगा हमें। स्ट्रिंग दिया हुआ बी, तो जो लास्ट है हमें, और इंट आई इक्वल टू कहाँ से, बी डॉट आई -1 से स्टार्ट करेंगे। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो चलेगा, आई माइनस माइनस होगा, ठीक है। इतना होने के बाद देखो लास्ट से हम स्टार्ट करें आई यहाँ से, आई के लिए क्या होगा, हमें आंसर में इसको स्टोर करना है। तो जो अपने जो आंसर को हम क्या बोले हैं, डेसिमल। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई करना, 0 है तो नहीं करना। तो चेक करेंगे इफ बी का जो आई है इक्वल टू अगर 1 है, स्ट्रिंग है ना, तो ऐसे 1 है, 1 है तब हमें करना है। तो डेसिमल जो है, डेसिमल में हमें प्लस करना है, क्या डेसिमल में हमेशा प्लस करना है इसका 2 टू द पावर पावर ऑफ 2 टू द पावर 2 कॉमा कितना का पावर, जो यहाँ पे होगा 0। तो जैसे पावर है अभी पावर है, तो और यहाँ आकर के क्या कर लेंगे, हर वक्त यहाँ आके पावर प्लस होगा, पावर प्लस प्लस पावर आगे बढ़ेगा, जैसे ही आई आगे बढ़ा पावर भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और डेट्स इट, यहाँ रिटर्न करेंगे हम, ये तो खत्म हो गया, ये यहाँ तक था, ये यहाँ तक था, एक सेकेंड, ये फोर लूप था, ओके डन। यहाँ हम रिटर्न करेंगे क्या, जो डेसिमल है वो, डेट्स इट, इतना काम था। हम ऐसे करते जा रहे हैं, यहाँ आई पे आए, ठीक है, आई अगर 1 है तो क्या करो, डेसिमल में पावर ले लो किसका, 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर आई अभी 0 है, यानी कि 1 आंसर आया। नेक्स्ट क्या है, फिर पावर प्लस प्लस हो गया, पावर ऑफ हो गया होगा 1, पावर 0 से हो गया होगा 1, ठीक है, पावर यहाँ के लिए 1 है, यहाँ लिखा हुआ आई आया 1 है तो इंटू करेंगे, 2 टू द पावर 1 क्या 2 आया, इंटू, और सॉरी ऐड करना है 1 + 2, अच्छे से लिखे क्या, ये रहा, ये है 1011, आई यहाँ है पीछे जाएगा, ठीक है। और पावर है अभी, पावर है 0, ठीक है। वेट अ सेकेंड, या डन, लास्ट से स्टार्ट कीजिए, अगर 1 है तो क्या करेंगे, डेसिमल जो है डेसिमल में प्लस करना है, पहले पावर लेना 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 0 है ना, 2 टू द पावर 0, 1 आया, प्लस करेंगे आगे, फिर आई आगे आया, पावर पावर भी एक बढ़ गया, एक हो गया, पावर यहाँ के लिए 1 है, आई 1 है, यहाँ 1 है तो क्या करूँ, डेसिमल में जोड़ दो, क्या 2 टू द पावर आई, 2 टू द पावर 1, 2 प्लस आई यहाँ आया। अगर 0 है तो इसमें नहीं आना, पावर बढ़ेगा बस, पावर यहाँ 2 था, यहाँ से फिर आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के लिए 3 हो गया, ठीक है, 3 हुआ तो यहाँ 1 है तो ये जुड़ेगा, क्या है जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पावर जोड़ेंगे, ये पावर 3 हो गया, यानी कि 8, 8 × 2 = 11 आंसर, ठीक है। लिख कर देंगे, 11 आंसर है ना। सबसे पहले हमें चाहिए एक इंट, डेसिमल में चेंज करें तो डेसिमल, ये है 0, एक होगा अपना पावर के लिए, पावर अभी स्टार्ट हो रहा है 0 से, एक फोर लूप चला रहे हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन बी के साइज से -1 से लेकर के आई माइनस माइनस करो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे बी का जो आई है, अगर ये इक्वल टू है किसके, बी का आई अगर इक्वल टू आ रहा है तुम्हारे 1 के,
तो हमें डेसिमल में काम करना है। डेसिमल में प्लस करते जाना है, क्या पावर ले लेंगे किसका, 2 टू द पावर जो पावर है, ठीक है वैसे ही निकालते हैं। और हमें यहाँ पावर को आगे बढ़ाना है, पावर प्लस प्लस, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम पावर, नोट पावर डेसिमल, डेसिमल में चेंज कर दो, दैट्स इट। रन करें। एक सेकेंड, कहाँ दिक्कत आ रहा है, मेन फंक्शन में बी है, बी का साइज -1 i-1 हो रहा, ठीक है। लोड जीरो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी, ये हम लिखेंगे ऐसे, बी के साइज से आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है जब तक, तब तक चलेगा, ठीक है। ये लिखने में गलत था बस, चलो रन करते हैं। अभी भी दिक्कत है, देखो इंट ये, ठीक है, डेसिमल पावर ले लें, आई इक्वल टू बी की साइज -1 से स्टार्ट हो रहा, आई कब तक चला, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक चलेगा, आई-1 हो रहा, ये तो ठीक है। इफ बी आई अगर 1 है तो डेसिमल में ये करो, 2 टू द पावर, ओके, पावर प्लस प्लस को रिटर्न करो डेसिमल, क्या दिक्कत है इसमें, आ ये रेस्पेक्टेड डेसिमल, ये तो ठीक है। इंट के लिए ये रहा, फॉर लूप के लिए ये रहा, इफ के लिए ये रहा, इसमें क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिख रहा है। इसे हम एक बार ऐसा कट करते हैं, यहाँ से वापस से इसको रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ फिर लाकर इसे को पेस्ट करते हैं, वापस से रन करते हैं, ठीक है। चल गया, इसका ग्लिच था प्लेटफॉर्म का, ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। ये हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, एरर तो आ रहा, बट ये लॉजिक सही है। अगर तुम देखो, अगर मैं पहले किया हूँ तो देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, कोड तुम्हें दिख रहा, अगर हम सबमिशन में जाए, पहले किया हुआ था, हाँ यही किया हुआ, मूव टू एडिटर, देखो ये किया हुआ मैं लाया हूँ अभी, ठीक है, यही है, बी के लेंथ से अगर बी है प्लस कर दो पावर, ओके डन। अब इसे रन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या भाई, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। देखो दिक्कत इसमें भी आ रही है, प्लेटफॉर्म का ग्लिच है, ठीक है, ये तुम्हें ड्राई रन करके समझ आ गया कैसे चल रहा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा हो गया, बाइनरी डेसिमल हो गया, ये बस प्लेटफॉर्म ये ऐसा था इसलिए, किसी और पे हम करके देखें, अगर प्रैक्टिस करना बाइनरी टू डेसिमल, कहीं और देखते हैं, बाइनरी डेसिमल, ठीक है। तो इसमें तो नहीं चल रहा, कोई और प्रैक्टिस, जीएफसी पे ही है सिर्फ, कोई और कोड से पे है, डेसिमल टू बाइनरी है बस, ठीक है। कोडिंग निंजा पे देखते हैं, निंजा बाइनरी डेसिमल मिल गया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ, प्रेस करो, अच्छा मेन फंक्शन दिया हुआ पूरा लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में ले जाना, तो यही जो हम लिखे थे, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ ला करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉल कर लेते हैं,
इंट इंटीजर एन दिया हुआ है, ठीक है। चलो हमें क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है एन, तो हम उस हिसाब से निकालें। इंट एन दिया हुआ है हमें, सीन लेना है क्या, अगर हम देखें कहाँ गया ये, कोई नहीं। चलो इंट एन लेना है, सीन ले लिए इनको। अब क्या है, हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। बाइनरी डेसिमल एन भेज दो स्ट्रिंग में चेंज करके, और रिटर्न भी करना है, सी आउट कर दो, इंट में चेंज करके ये दे देगा आंसर इक्वल टू। चलेगा क्या, देख लेते हैं। बस हम यहाँ चेंज थोड़ा किए हैं, नहीं चलेगा। स्ट्रिंग में है, यहाँ हम इंट पास किए हैं, ठीक है। तो यहाँ में अगर स्ट्रिंग से करना है, अब हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे थे पहले, पहले ट्रीट कर रहे थे हम स्ट्रिंग टाइप का, अब हम ट्रीट करेंगे जैसे 111 है, ये अब इंटीजर है, इसको चेंज करना है, ये इंटीजर है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहीं से जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सेम काम करना है, अगर 1 है तो बस हमें चेक करने का, बस ये करना है। जो स्ट्रिंग है इसको क्या बोल दो, इंट बोल दो, इंट बी, बी ही पास कर देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, ये ऐसे नहीं चलेगा हमारा काम, हमें क्या करना होगा, देखो लॉजिक तो यही हुआ, ये करना है, ठीक है। उससे पहले हमारा कुछ और चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखो पहले तो हम यहाँ से लास्ट डिजिट निकालेंगे, क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। अगर अपना क्या है, यहाँ से हम निकालेंगे डिजिट, इंट डिजिट, डिजिट निकाला हुआ था, ठीक है। ये जो एन है, एन मॉड्यूलो 10 निकालेंगे, डिजिट निकल गया, डिजिट निकला, अगर डिजिट 1 है, इफ चेक करेंगे डिजिट अगर क्या है 1 है, डिजिट 1 है तो क्या करो, डेसिमल में वैसे ही करो, डेसिमल में प्लस करो, जो पावर है 2 टू पावर पावर, यही था ना लाइन, ये लाइन तो रहेगा। और ये भी चेक करे रहे हैं, जो जो बस कैरेक्टर चेक कर रहे थे, यहाँ हम नॉर्मल चेक करें, तो हमें डिजिट निकाल के चेक करना है, डेट्स इट, इतना काम करना है। अब इसे कम करना है तो n/10 कर दो, क्योंकि इंटीजर है ना, तो बाई 10 कर दो, तो 111/10 करोगे तो 1 1 आ जाएगा, ये खत्म, राइट शिफ्ट हो गया, काम खत्म अपना। और पावर को प्लस प्लस करना है, डेट्स इट। देखो मैं अगर तुम्हें यहाँ बता, इंट में चेंज कर दिया इसको, इंट भी पास कर दिया, डेसिमल है, पावर 0 है, ठीक है। वापस हम क्या करेंगे, वाई, जब तक बी जो है नॉट इक्वल टू 0 हो रहा, जब तक बी 0 नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, डिजिट निकालना, इंट डिजिट, डिजिट क्या होगा, बी और 0 10 निकल गया। चेक करेंगे इफ डिजिट क्या, डिजिट अगर 1 आ गया, डिजिट 1 आ गया तो डेसिमल में प्लस कर दो, पावर ले लो किसका, 2 टू द पावर पावर का, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये तो कर लिए, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो बी को है उसको अपडेट कर दो, b/10 कर दो, उसके बाद पावर को आगे बढ़ा दो, पावर प्लस प्लस हो गया, डेट्स इट, इतना काम करना है। यहाँ से रिटर्न हमें करेंगे इन टाइप का ना, रिटर्न कर देंगे जो डेसिमल आया, इतना हो गया काम। और यहाँ से हम कॉल के इंट आंसर, ओके डन। डेसिमल पावर नहीं काम कर रहा, पावर ऐसे काम करता है, इंक्लूड एल्गोरिथम, ठीक है। अब रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। तो देखो हम स्ट्रिंग वाला भी देख लिए और इंटीजर वाला भी देख लिए, कुछ चेंज नहीं था, बस यहाँ डिजिट निकालना हमें, ये हमें पहले से आता था इतना, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया अपना। अब हमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है, चलो हमें क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। नाउ वी हैव टू चेंज डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो डेसिमल में मान लो 10 है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो अगर हम ऐसे करते थे, 2 से 5 बार में रिमाइंडर 0, 2 से 2 बार में रिमाइंडर 1, 2 से 1 बार में, ठीक है, रिमाइंडर 0, और इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 1 0 1 0। तो तुम्हें समझ आ रहा है हमें क्या करना है,
ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं हम, हमारा जब तक ये जीरो नहीं होता इन, अगर यहाँ हम दोबारा ये करें दो से, तो ये क्या जीरो आ जाएगा, जीरो बार में, तो ये जीरो जीरो, अगर हम पहले जीरो जीरो लिख भी दें तो कोई मतलब नहीं बनता। एक सेकेंड, ये जीरो है लेकिन ये रिमाइंडर तो वन ही बचेगा ना, वन। ठीक है, तो आंसर क्या बना, जीरो वन जीरो वन जीरो। ठीक है, अगर हम लास्ट तक जा रहे हैं तो आंसर मेनली क्या है, ये तो जीरो है, इधर जो भी होगा जीरो ही होगा। ठीक है, तो हमें देखना इतना ही है। ठीक है, तो मतलब हमारा क्या बन रहा, आंसर ऐसे आएगा। तो क्या, जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक हमें करते जाना है ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब तक, क्या है ना, फाइल इन ग्रेटर देन जीरो, मतलब जब तक जीरो नहीं होता क्या करेंगे, आंसर होगा, आंसर में प्लस करेंगे, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इन टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का दिया हो उस हिसाब से कर लेंगे हम। तो ये डेसिमल से बाइनरी है, यहाँ से रिप्लेस मारो इसे, इंटीजर दिया हुआ है हमें, लेकिन रिटर्न करना है हमें क्या, स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग में, दिख रहा, चलो, अगर स्ट्रिंग में रिटर्न करना है तो हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही लिखना। क्या हुआ भाई, ये क्यों चल रहा है ऐसा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इफ एन अगर जीरो है तो जीरो के लिए क्या चेंज करना है, तो रिटर्न कर देंगे हम सीधा रिटर्न। ऐसे स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग रिटर्न करें, पहला काम। एक स्ट्रिंग हम बना रहे थे आंसर के लिए, स्ट्रिंग आंसर, ये क्या है, आंसर को अभी बोल दो एम्प्टी है। एक काम हो गया, नेक्स्ट होगा वाइल एन जो है अपना, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तब तक ये चलेगा। आंसर में हमें रखते जाना, आंसर प्लस करना, प्लस इक्वल टू, क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग में चेंज, स्ट्रिंग में चेंज होता है मतलब क्या होता, अपेंड होता है ऐसे, जैसे वन है, उसके बाद तुम्हें अपेंड करना है जीरो। ठीक है, तो ये जीरो वन बन जाएगा, अपेंड करना है थ्री, तो ये थ्री जीरो वन बन जाएगा, और अपेंड पहले होता है तो ये रिवर्स ऑर्डर में ही हो रहा। अगर हम अपेंड करते ऐसे ऐसे होता तो हमें रिवर्स करना पड़ता, ये ऐसे ही रिवर्स हो रहा। ठीक है, तो अपना काम सही है, टू स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में चेंज करके डाल रहे हैं क्या, किसको, एन मॉड्यूलो टू को, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो टू ले रहे हैं, यही तो कर रहे थे हम। क्या रिमाइंडर है, दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसी को। ठीक है, ये डेट्स इट, टू स्ट्रिंग हो गया। एक सेकेंड, ये प्लस सीधा ऐसे नहीं करते, यहाँ प्लस आंसर कर देते हैं वरना गलत आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में चेंज करके तब आंसर को ऐड करो, या फिर जो भी ये लिख दिए। ठीक है, अब एन को हमें कम करना है, एन बाई टू करना है, या राइट शिफ्ट भी मार सकते थे, राइट शिफ्ट मारेंगे लास्ट वाला खत्म। ठीक है, और कुछ करना था, बस डेट्स इट, रिटर्न करना है यहाँ से हमें आंसर को। ठीक है, ये रहा अपना कोड। क्या था हमें, इंटीजर एन है, हमें पहले चेक करना इफ एन इक्वल टू अगर जीरो आ जाए, एन जीरो है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो जीरो, दैट्स इट। आफ्टर दैट टेक a answer in note in type string type answer that will initialize with empty string. Okay, after that take a condition while n greater than zero, while n greater than zero we have to do this, answer equal to, we have to change to string and append here like we have n modulo 2. Okay, after that plus answer also. After storing in answer we have to update the n by 2 here. Okay, after that n by 2 answer is done, that's it. And then we have to return the answer here. We don't need to reverse, because if you change in the string it append from the first, like that, like it append like 1, then we have 0 to insert. Okay, then it becomes 0 1. If we have 2 to insert, it becomes 2 0 1. Okay, अंडरस्टैंड ना, ये हमारा क्या हो रहा, जैसे हम वन है, वन के बाद अपेंड अगर करते हैं जीरो तो जीरो ऐसे आता, लेकिन अगर हम ये ऐसे
स्ट्रिंग में चेंज करके अपेंड कर रहे हैं, अपेंड करने में ये पहले आता है तो ये पहले ही रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, ये हो गया, बस डेट्स इट। रन करते हैं। चल गया। ठीक है, सबमिट करते हैं। चलो हम कितना क्वेश्चन कर लिए? 1 2 3। अच्छा वहाँ देख लेंगे ना, हमें गिनना थोड़ी है। 5 और ये 6 क्वेश्चन कर लिए। नहीं यार, 7 कर लिए, डेसिमल टू बाइनरी चल नहीं रहा अभी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब अपने पास है सेट बिट काउंट, सेट बिट इन इंटीजर। ठीक है, हमें सेट बिट करना है, मतलब देखो सेट किसको बोलेंगे, देखो दो चीज होता है, सेट अनसेट। सेट बोलते हैं 1 को, अनसेट बोलते हैं 0 को। दैट्स इट। तो देखो सेट बिट हमें काउंट करना है, सेट मतलब 6 में कितना सेट है। तो n इक्वल टू अगर 6 है, इसको कैसे लिखेंगे? 6 ऐसे 2 से 3 बार में यहाँ 0 आया रिमाइंडर, 2 से 1 बार में 1 रिमाइंडर आया, तो 1 1 0 होता है 6। इसमें कितना 1 है? 1 1 2 1, 2 बार 1 है ना, 2। तो आंसर क्या होगा? 2 2। अगर 8 है इसके लिए देखना है, 2 से 4 बार में 0, 2 से 2 बार में 0, 2 से 1 बार में 0, 1 0 0 0, डेट मीन्स ओनली 1। ठीक है, तो समझ आ गया कितना 1 है वो जोड़ गिनना है हमें। तो तुम ये देखो, तो पहले इसको क्या कर लो, बाइनरी में चेंज कर लो। ठीक है, देखो बहुत सारे मेथड है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। एक तो तुम्हारे पास से लाइक, तुम्हारे पास दिया हुआ है एन, बाइनरी में दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, इंट एन दिया हुआ है 6। ठीक है, ये दिया हुआ तुम्हें। हमें क्या करना है, एक इंट काउंट लेना है अगर हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इंट काउंट लिए, काउंट है भी 0। ओके, जब तक एन जो है, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो जाता, तब तक रिमाइंडर निकाल। इंट रिमाइंडर एन मॉड्यूलो 2, रिमाइंडर निकल गया जो भी होगा। इफ रिमाइंडर 1 है तो इक्वल टू 1 आया, मतलब बीट हम निकाल रहे हैं एक एक करके। अगर 1 है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस होगा। डेट्स इट। और एन को अपडेट करना बाई 2 करके, और यहाँ हमें रिटर्न कर देना है। तो देखो हम क्या किए, एन इक्वल टू 6 है हमारा अभी पहले, फाइल ये 0 नहीं है, रिमाइंडर निकालें 6 रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 1 नहीं है। ठीक है, तो हम काउंट प्लस प्लस नहीं किए, बस एन बाई 2 किए, तो एन बाई 2 करने पे 3 आया। अब 3 के लिए देखो, 3/2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया तो काउंट 1 कर दो, काउंट 1 हो गया। आफ्टर डेट इसे अपडेट कर दो, 3/2 1 आया। अब 1 है, 1 रिमाइंडर 2, 1 रिमाइंडर 2 क्या होता है? 1 रिमाइंडर 2, 1/2 रिमाइंडर तो 1 आया, रिमाइंडर 1 आ गया तो काउंट प्लस प्लस कर दो, ये हटकर 2 हो गया। उसके बाद बाई 2 कर दो, तो 1/2 करो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आया, एन 0 हो गया। ठीक है, तो रिटर्न काउंट कर दो 2। ठीक है, ये तो मेथड है ऐसे नॉर्मली। ठीक है, ये भी चल जाएगा अपना, लेकिन हमें क्या करना है, बीट वाइज हम सीख रहे हैं तो हम उससे करेंगे। ठीक है, तो देखो एन अगर है 6, तो 6 के लिए अपना क्या आया है, 6 के लिए क्या आया था, 1 1 0, 1 1 0, 1 1 0। तो हम यहाँ से देखना अगर स्टार्ट करें। ठीक है, अगर इसको एंड करके देखते हैं लास्ट वाले बीट को। ठीक है, 0 एंड किससे भी करके देखते हैं, 1 से। अगर इन दोनों का एंड 1 आता है, क्योंकि देखो 1 1 का एंड ही 1 आता है सिर्फ, एंड तो हम पढ़े थे ना, 1 1 का एंड 1 आता, तो हम अगर पता चला कि 1 आया दोनों का एंड करने पे, तो मतलब आंसर में काउंट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक सा है अपना फंडा यहाँ पे, यहाँ पे अपना फंडा ये होने वाला है। क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान सा चीज़ देखना है यहाँ। ठीक है, हमें देखना है यहाँ से ये चीज़, काउंट लिए, इंट काउंट इक्वल टू 0 है। क्या करेंगे हम, जब तक वाई एन नॉट इक्वल टू 0 हो रहा, काम तो वही है, बस हम अभी बीट वाइज से कर रहे हैं। चेक करेंगे इफ एन को एंड करने 1 करने पे अगर 1 आ रहा, इसका मतलब अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 आ रहा, तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस।
ठीक है, और एन को क्या करो, हमें क्या करना था, ये हटाना था, ये हमें पता है, राइट शिफ्ट मारो हट जाएगा, पीछे हम करके आए थे, राइट शिफ्ट मारो ये इधर चला जाता हट जाता है। ठीक है, तो एन को क्या कर दो, एन को बस इक्वल टू क्या कर दो, एन राइट शिफ्ट एक से मार दो, दैट इज रिटर्न कर देंगे हम जो अपना काउंट है। देखो एन हटाने हमें ये पता भी है ये कैसे हटेगा, राइट शिफ्ट मार तो खत्म। ठीक है, और अगर एंड वन करने पे वन आ रहा मतलब काउंट को प्लस वन कर तो वन होगा, दैट्स इट। तो हम ये रखने वाले नंबर वन वेट्स लिखा हुआ है, रिमाइंडर वन है, ये तो हम देख लिए, इसको सबमिट करेंगे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, बट हम दिखाते हैं इसके बाद वाला, ये अपने पास लिखा हुआ था। ठीक है, ये काउंट समझ गया, जब तक नहीं ये रिमाइंडर निकलो। ठीक है, तो बस हमें यहाँ चेंज करना है ना, यहाँ थोड़ा चेंज करना है, जब तक एन जीरो नहीं हो रहा तब तक हमें क्या करना है, इफ एन को एंड ले रहे हैं वन के साथ, अगर ये वन आता तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, और उसके बाद अगर नेक्स्ट हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट मारना है, तो एन को इक्वल टू एन राइट शिफ्ट वन से। ठीक है, अब सबमिट, सीधा सबमिट करते हैं। डन, ये भी हो गया। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था नहीं, 7 क्वेश्चन हो गए, कहाँ गए अपने क्वेश्चन, ये तो हो चुका है, वो क्यों नहीं रहा, वापस से रन करते हैं, रिफ्रेश मार लेते हैं एक बार। ठीक है, डी एस एस सीट ये रहा, यहाँ से आ जाओ, अपने पास है बिट मैनिपुलेशन, इसे हम एक टाइम के लिए लॉग इन कर लेते हैं। मैं लॉग इन करके आता हूँ, ठीक है, कि ये अपना सेव रहे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लॉगिन क्या करना है, लॉगिन करो, ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, तो मैं तो खुद से करूँगा। ठीक है, ये मैं करके बताता हूँ तुम्हें, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा अपना, ओके, कुछ पासवर्ड रख रहे हैं हम। ठीक है, ठीक, पासवर्ड अपने डाल दिए, लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम ये अगर हम ट्रैक करें अपना रिकॉर्ड, जो भी करेंगे ये सेव हो जाएगा, तो वो पहले से किया हुआ था, ये हटा लेते हैं अभी के लिए, यहाँ से देखते हैं जो डन वाला है इसको हटा लो। ठीक है, अब इसको क्या ऑल पे कर दो, यहाँ से ले जा बीट मैनिपुलेशन पे, यहाँ हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, देन ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, बाइनरी डेसिमल सिलेक्ट नहीं हो रहा, बाकी तो हो रहा, कुछ हो गया एरर। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, बाइनरी डेसिमल के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहा ये। ठीक है, आगे देखो, चेक कर लूंगा मैं बाद में, यूनिक एलिमेंट निकालना है मैं। ठीक है, तो यानी 7 और 1 सेलेक्ट नहीं हुआ, 8 हो गया, या 16 प्रॉब्लम हो गया है, ये मैं 15 रखा था। ठीक है, तो कुछ हुआ है ऐसा, कोई एरर है, मैं इसे सॉल्व कर लूँ, चलो मैं बाद में कर लूँगा इससे, या 1 सेकंड दो मुझे अभी। चलो डन, ये हो गया अपना। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, अब हमें निकालना है यूनिक एलिमेंट। ओके, हमें बताना है यूनिक एलिमेंट। अब प्रॉब्लम कितना दिखा रहा, 15। ठीक है, ये कह रहा था खत्म, ये क्या एक्सेप्टेड क्यों दिखा रहा, ठीक है, सिंगल डालना है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है, ये दिया हुआ है नंबर, मतलब एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें बताना है यूनिक एलिमेंट कौन है, जैसे जो अगर एक बार करेगा, दैट्स इट। इसमें देखो 4 एक बार आ रहा, यहाँ आंसर होगा 4, कहाँ गया 4, बस हमें बताना है कौन एक बार आ रहा है सिर्फ। तो देखो यहाँ हमें नॉर्मली हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, ये बंद कर दो। ठीक है, अपने पास बहुत सारे मेथड है, मेथड 1, सबका फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी काउंट एक तो नॉर्मल एरे से कर सकते हैं, एक मैप का यूज़ कर, अनऑर्डर मैप का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हम देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यूनिक एलिमेंट निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी देखना होगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हम करने वाले हैं बिट वाइज से। ठीक है, जोड़ का यूज़ करेंगे,
तो जोड़ का सीधा मतलब है जीरो जोड़ जीरो करो तो जीरो आता है, जीरो जोड़ वन करो ये भी क्या आता है, वन आता है। ठीक है, जोड़ अगर मैं तुम्हें बताया था ऐसे, जब एक्स वाई जेड ये था अपने पास ऐसे, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ठीक है, एक वन है तो वन, यही बताया था। तो तुम्हें मान लो जीरो जोड़ जीरो करना है तो जीरो आया, वन जोड़ वन करना है ये भी जीरो आया, जीरो जोड़ वन या वन जोड़ वन है, वन जीरो ये है तो ये वन आता है। इतना कुछ होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर सेम सेम है तो जीरो आएगा, ये पता है, सेम मिला तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास अगर सेम होगा तो वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, और यूनिक होगा अगर, ठीक है, अगर एक हुआ अकेला तो सेम बन जाएगा आंसर में। तो हम अगर अपने पास है वन वन टू, ठीक है, तो वन जोड़ वन किए ये जीरो बना, जीरो जोड़ टू किए टू बन गया आंसर, दैट्स इट। ठीक है, जैसे वन वन टू टू थ्री वन थ्री फोर फाइव फाइव फोर आया, इसमें देखना है। तो वन जोड़ वन किए ये बना जीरो, जीरो जोड़ टू किए ये बना टू, टू टू किए ये बना जीरो, जीरो थ्री किए थ्री, थ्री फोर किए, थ्री और फोर का जोड़ देखना है, थ्री जोड़ फोर का देखना है। तो थ्री को बाइनरी में चेंज करेंगे, फोर को भी चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। तो चेंज करके देखते जाएंगे, तो फोर फोर तो खत्म हो जाएगा, फाइव फाइव खत्म हो जाएगा, लास्ट में थ्री बचेगा। तो ऐसे बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये कर लेगा, ये ऑपरेटर करके वो कर लेगा अपना काम। तो हमें जोड़ देखना है, जोड़ करते जाएंगे तो सेम से वाला कैंसिल होते जाएगा और लास्ट में एक बच जाएगा। तो बस आसान सा है, क्या करेंगे, हमें आंसर देना है इंटीजर टाइप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर बना लेते हैं, इंट आंसर, आंसर है अभी जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, एक फोर लूप चला लेते हैं, इंट नम लेते हैं, किस में, नम्स में, एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, आंसर में हम आंसर में जोड़ कर रहे हैं किसको, नम को, लास्ट तक कर जाएंगे, जो लास्ट में बचा वही आंसर है। डेट्स इट, तीन लाइन का कोड था, रन करते हैं। रन हो गया, सबमिट कर लो। तो ये सबमिट भी हो गया। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी होमवर्क दूंगा। सेट बिट तो हो गया, यूनिक एलिमेंट डन, एंड कौन सा, काउंट नंबर ऑफ बिट टू बी फ्लॉप। ठीक है, देखो हमें ए से बी बनाना है, क्या है, दो दिया हुआ है 10 और 20। ठीक है, हमें दिया है ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू दिया है 10, बी इक्वल टू दिया है 20। इसको बाइनरी में चेंज कर लो, 10 को कैसे लिखेंगे, निकाल लेते हैं, 20 को कैसे लिखेंगे, ये भी निकाल लेते हैं। टू से फाइव जीरो, टू से टू वन, टू से वन जीरो, टू से 10 जीरो, टू से फाइव जीरो, टू से टू वन, टू से वन जीरो। ये है अपने पास 1010, ये है अपने पास 10100। ठीक है, 1010 1010। ठीक है, अब इनका हमें क्या करना है, ए से बी बनाना है, ए से बी बनाना है। तो हमें ये देखना है कि कितना बार हमें फ्लिप करना होगा, जीरो से वन करना होगा या वन से जीरो करना होगा, कितना बार। ठीक है, तो ये देखो, ये है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, हो गया सेम। ठीक है, मतलब साइज में तो जीरो जीरो सेम है, ये वन और जीरो गलत है तो एक बार यहाँ फ्लिप करना होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, जीरो वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो जीरो, ये 10 है, ये 20 है। ठीक है, अब इनको देखो ऐसे रखो, अब फ्लिप देखो कितना बार करना पड़ रहा है, यहाँ तो नहीं, यहाँ एक बार, यहाँ दो बार, यहाँ भी तीन बार, यहाँ चार बार, तो चार बार फ्लिप करना पड़ेगा तब जाकर बनेगा ये। क्योंकि इसको देखो वन बनाओगे तुम, इसको जीरो बनाओगे, इसको वन बनाओगे, इसको जीरो बनाओगे, चार बार किए तब जाकर बनाइए। ठीक है, तो यही बताना है हमें। तो देखो आसान से, तुम्हें समझ आ रहा, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कैसे जोड़ निकालते जाएंगे। क्यों निकाल रहे हैं, देखो अगर हम जोड़ निकालें दोनों का, ए और बी का, ठीक है, तो क्या है अपने पास, पहले हम जोड़ निकाल के रखते हैं, जीरो वन जीरो वन जीरो, यही था ना, जीरो वन जीरो वन, ठीक, वन जीरो वन जीरो जीरो। अगर हम जोड़ निकाल दिए दोनों का, ठीक है, जोड़ निकाले तो क्या था, जीरो वन 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 वन। ठीक है, तो जितना बार वन बना है इसको हमें जीरो बनाना है, पूरा जीरो बनाना है। ठीक है, पूरा जीरो बनाने में कितना टाइम लग रहा है ये देखो,
जोड़ ले लिए, ठीक है। सेम सेम होगा तो जीरो होगा पहले से, जो सेम सेम नहीं होगा वो वन होगा। आई बात समझ? इसमें सेट बीट अगर हम कर लें, मतलब काउंट कर ले बीट काउंट, तो ऐसे ही मिल जाएगा हमें। एक तो मेथड ये है अपने पास, ठीक है। इतना ही काम कर लेते हैं, क्या बोलते हो? अगर हम ऐसे करें, जोड़ ले लिए, तो क्या होगा, जो अलग अलग होगा, सेम सेम होगा तो वो तो जीरो दे देगा, बाकी जो अलग अलग होगा वो देख लेंगे। तो अगर हम बीट काउंट किए थे कहीं, बीट काउंट बाइनरी डेसिमल सिंगल नंबर नंबर, ये क्या था, काउंट सेट बिट यही था अपना। तो सेट बिट हम कॉल कर लेंगे, चलो इससे अपना काम हो जाएगा। कितना बार वन है वो काउंट कर लेना है, ठीक है। कहाँ था अपना प्रॉब्लम? बीट डिफरेंस ये था, हाँ यही था। हटा लेते हैं, हम दूसरे मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। एक रहेगा अपने पास ये, सेट बिट हमें पता है वहाँ पास करना है, ठीक है, किसी का। तो इंट हम लेते हैं, सी ले लेते हैं, सी निकालते हैं, ए जोड़ बी, इसमें कितना ये है हमें काउंट करना है ना। तो इंट आंसर ले लिए, आंसर इक्वल टू, कॉल कर लो सेट बिट को, सेट क्या पास करेंगे, सी पास करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर। अपना हो जाएगा, कितना बार वन है वो काउंट कर लिए, मतलब उसको जीरो बनाएंगे तो हो जाएगा अपना काम। देखते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। सेट वेट में करना आता था, हम पहले करके आए थे, ठीक है। यहाँ बस हम क्या किए, जोड़ निकालिए, बस इतना दिमाग निकालना, जोड़ निकालने पे जो सेम होगा वो जीरो हो जाएगा, और जो अलग होगा जिसे हमें फ्लिप करने की जरूरत है वो वन होगा, तो वन को फ्लिप करने की जरूरत है। दैट्स इट, ये भी हो गया अपना, ये दोनों तो हो गया। और कितना बचा है यार, ये तो काम तो नहीं कर रहा। रिफ्रेश करते हैं वापस से, ये स्पीड सही मेरे ख्याल से नहीं आ रही। अच्छा, 11 चल रहा है, बस उस टाइम अपडेट नहीं हो पा रहा। नहीं, ये रहा अपना, कहाँ है बिट मैनिपुलेशन, 10 प्रॉब्लम हो गया। काउंट ऑल बिट्स 1 to n, देखो ये हम सीट ये करना तो जानते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, 1 से n तक में बीट काउंट करना है, ठीक है। तो वन कितना बार है वो हमें काउंट करना आता है, तो हम हर बार के लिए काउंट कर लेंगे। क्या बोलते हो? ये प्रॉब्लम क्या बोलता है, देखो, ये मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, ये हटा दो अभी के लिए। क्या करेंगे, एक एन दिया हुआ है तो हमें वन से स्टार्ट करना है और एन तक। तो वन से एन तक में देखेंगे कितना बार वन आया है, ठीक है। जैसे वन से एन फोर है ना, चलो एक बार ड्राइव करके दिखाता हूँ, तुम कोड तो लिख लोगे मेरे ख्याल से। एन इक्वल टू वन से फोर तक देखना, तो वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए। वन के लिए होता है वन, टू के लिए होता है जी 1 0, थ्री के लिए होता है 1 1, फोर के लिए होता है 1 0 0। यहाँ अगर काउंट करें तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, एक एक दो, दो चार, एक पाँच, टोटल पाँच आया, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम तो तुम कर लोगे। क्या है, हमें निकालने आता है सेट वेट, ठीक है। हमें क्या है, सेट वेट निकालने आता। तो हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, वन से एन तक इक्वल टू एन तक, ठीक है। लिख देना पूरा, ठीक है, तुम वहाँ कर लेना। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू वन से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक, आई को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। आंसर एक लेंगे, यहाँ इंट आंसर वो है भी जीरो। आंसर में हर वक्त करते जाएंगे सेट बिट को कॉल कॉल सेट बिट को कॉल करेंगे आई के साथ, डेट्स इट, रिटर्न कर देंगे आंसर। और यहाँ सेट बिट का फंक्शन जो हम पहले सेट बिट के लिए लिखे थे, डेट्स इट, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम करोगे। नेक्स्ट है अपने पास प्रोग्राम टू फाइंड वेदर एंड नंबर इज पावर ऑफ टू, ये पहले ये डन कर दें। ये हमें बताना है पावर ऑफ टू है या नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, अगर देखना है हमें पावर ऑफ टू है या नहीं, ठीक है। तो पावर ऑफ टू देखने के लिए क्या करना होगा हमें, एट, हम अगर नॉर्मली ऐसे करते हैं बिना सेट बिट के, सॉरी बिना बिट मैनिपुलेशन के, तो हम देख लेते हैं इफ, ये मान लो कैसे देख सकते हैं,
कैसे देख सकते हैं, सोचो। पावर ऑफ टू देखना है हमें, ये है या नहीं। ठीक है, तो अपने पास केस क्या है, टू पावर एक तो जीरो होता है, वन और टू, टू पावर थ्री। तो हम चेक करें जीरो से फोर, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एन तक, कहीं तक जा सकते हैं, ठीक है, या इंट मैक्स तक मान लो कुछ भी। इफ पावर ऑफ टू टू द पावर आई इक्वल टू एन है तो रिटर्न कर देंगे यस। ठीक है, तो बेसिक सम मतलब क्या होता है, बुल टाइप का ना, यस और नो करना है बस। ठीक है, तो हम क्या करें, फोर लूप चला रहे हैं, जीरो से स्टार्ट करना है, फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एन है ना, तो कितना तक चेक करें, आई इंटू आई लेस देन एन तक चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट तक पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू तक जा सकते हैं सर, देख लो, ये अपने ऊपर है। पूरा भी चलाएंगे हमें दिक्कत नहीं होगी, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया, हमें क्या चेक करना है, इफ पावर हो, ठीक है, टू कॉमा आई का पावर, अगर ये इक्वल टू क्या आ गया, जो एन है, तो रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, नहीं तो बोल देंगे रिटर्न फॉल्स। देखे रन करके, ये देखो इसमें हम बीट मैनिपुलेशन यूज नहीं किए अभी तक। ठीक है, ये ऐसे आंसर आ जा रहा, सबमिट करके देख लेते हैं। टाइम कितना हमें लग गया, आज में 1 घंटा 16 मिनट लगा। क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर हो गया है, क्या दिक्कत है, कुछ आया एट के लिए, एट के लिए फॉल्स आ रहा है, लेकिन आना चाहिए ट्रू। एट के लिए फॉल्स कैसे आएगा, टू टू पावर अगर थ्री पे जाएगा तो एट आ जाएगा, टू टू द पावर थ्री, ये पूरा जाएगा यार। ठीक है, अब चलाओ रन करके, ये इन तक चला जाओ। ठीक है, सबमिट हो गया। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया अपना, लेकिन ये मेथड हमें हम सीखने आए हैं बिट मैनिपुलेशन, हम उससे करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो जो भी दो का ये होगा, ठीक है, टू द पावर जीरो, टू द पावर वन, टू द पावर टू, टू द पावर फोर, थ्री, टू द पावर फोर, यानी कि वन, टू, फोर, एट, 16। ठीक है, इसके लिए अगर हम बाइनरी देखें तो क्या होता है, वन होता है, वन जीरो होता है, वन जीरो जीरो होता है, वन जीरो 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 होता है, वन जीरो 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 होता है, ऐसा आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा सिर्फ टू का कोई मल्टीपल होगा, टू टू द पावर, ऐसा हम लिख देना, टू टू पावर जीरो, टू टू पावर वन, टू टू पावर टू, टू टू पावर थ्री, टू टू पावर फोर, इस टाइप का। तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं, सेट बिट एक होते हैं, सिर्फ एक। आ रही समझ, 16, या फिर अगर हम 32 लिखे तो वन आ जाएगा, बाकी सब जीरो आ जाएंगे। तो इसमें सेट बिट सिर्फ वन होता है। ठीक है, एक सेट बिट होता है, आई बात समझ। तो देखो हम क्या कर लेंगे, चेक कर सकते हैं कैसे, इन का एन ले सकते हैं उसके जस्ट पीछे वाले से, जैसे अगर अपने पास एट है एक, तो इसके जस्ट पीछे वाला सेवन होगा, ऑड है, तो इसका क्या होगा, ये है अगर वन जीरो 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 तीन बार, तो सेवन के लिए क्या आता है, वन 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 आता है। अगर इसको हम एंड ले लें तो क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, ये अगर जीरो है तो जीरो, सारा जीरो बन गया। अगर सारा जीरो बन रहा है तो ट्रू बोल दो, जस्ट पीछे वाले से एंड लेने पे सारा जीरो बोल रहा है तो ट्रू, ये है पावर में। नेक्स्ट देखो, एक है अपने पास, सेवन ले लेते हैं, सेवन वन 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 है, सिक्स लेते हैं, इसका पीछे जस्ट सिक्स है, सिक्स क्या आता है, फोर टू सिक्स। ओके, इन दोनों का अगर एंड लिए, वन जीरो जीरो, वन 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 वन, ये जीरो नहीं बनाना तो ये क्या है, फॉल्स बोल दो, ये पावर ऑफ टू नहीं है। आई बात समझ, क्यों, क्योंकि देखो तुम, इसमें सिर्फ एक बीट होता है, उसके जस्ट पीछे वाला में वो ऑड है तो ज्यादा बीट होंगे, सेट बीट, कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो अगर वन के लिए देखना है, वन के लिए वन आता है, जीरो के लिए जीरो ही मान लो। ठीक है, तो वन जीरो का जीरो आता है, तो जीरो तो आ गया, तो वन टू के पावर है, टू के पावर जीरो का पावर वन है, वन तो आता है ना जीरो में, वन है। तो चलो रन करके देखिए इसे, लिखा हुआ है अपना, अच्छा ये फोर लूप वाला लिखा हुआ है। हमें मेन अभी जो हम सीखे वो लिखना है, तो हमें एक लाइन का कोड है रिटर्न। पहले हम चेक करेंगे एन जो है अपना,
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड ये एंड ओ वाला नहीं है, बिट वाइज नहीं है, ये लॉजिकल वाला है। इसका मतलब ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अब देखना एन, एन का एंड लेना किसके साथ, n-1 के साथ। अगर ये क्या आ जाए, एन एन का एंड क्या आ जाए हमें, अगर 0 आ जाए तो डेट मीन्स रिटर्न ट्रू, ठीक है। या फिर ट्रू नहीं भी करेंगे तो इक्वल टू दे दिए, मतलब ये ट्रू ही है। इतना करना है। इन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एन, और उसके जस्ट पीछे वाले का एंड 0 आना चाहिए। तो ये क्या होगा, पावर ऑफ 2 है। अब रन करें, सबमिट करते हैं सीधा। अब ये भी हो गया डन। नेक्स्ट है अपने पास फाइंड पोजीशन ऑफ द वनली सेट बिट, ठीक है। ये तुम होमवर्क में करना, थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, ये कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इजी इजी जल्दी जल्दी खत्म होने वाला बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है हमें, हमें क्या करना है ये तुम करना, फाइंड करना पोजीशन ऑफ ओनली सेट बिट, मतलब 1-1 कहाँ है वो तुम्हें करना है। देखो मैं बता देता हूँ एक बार मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास 7 दिया हुआ है, 7 में 1-1-1 यहाँ है, तो सेट बिट कहाँ कहाँ है, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन सारे पे। अगर 8 है तो 1-0-0-0 है, ठीक है। हम देखेंगे सेट बिट, तो हमें देखो बेसिक सा फंडा क्या है, लास्ट वाला बिट देखेंगे 1 है, एंड करने पे 1 आ रहा, ठीक, मतलब 1 होगा। और नहीं आ रहा तो राइट शिफ्ट मारेंगे, राइट शिफ्ट मारेंगे, राइट शिफ्ट मारेंगे, अगर ये 1 आ रहा तो बता देंगे हाँ है, दैट्स इट। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वैप करना दो एलिमेंट को, तो ये तुम नॉर्मली ऐसे करते थे टेम्प लेकर के। अगर तुम्हारे पास ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है 7, तुम्हें स्वैप करना है, ए में 7 डालना है, बी में 5 डालना है। तो देखो तुम्हारे पास कैसे होगा, एक कॉपी बना होगा ए का 5, एक कॉपी बना होगा बी का, ये होगा 7, तुम्हें एक्सचेंज करना है दोनों को, ठीक है। तो तुम क्या करते थे, एक टेम्प्रोरी लेते थे, टेम्प लेते थे, क्या करेंगे इसमें ए का वैल्यू डाल दिए, ए का वैल्यू 5 डाल दिए, ठीक है। और ए ए का वैल्यू यहाँ हम स्टोर कर चुके हैं, तो बी वाला ए में क्या डालेंगे, ए इक्वल टू बी कर देंगे, ए यहाँ 7 डाल दिए, ठीक है। और यहाँ जाकर टेम्प डाल दिए, तो हो जाता था काम। देखो क्या करते थे हम, ए का कुछ वैल्यू है 5, या फिर दो डब्बा है तुम्हारे पास, इसमें ए है, ये डब्बा में बी है, तुम्हें स्वैप करना है, इसमें बी डालना है, इसमें ए डालना है, ठीक है। तो तुम एक नया डब्बा बनाते थे, ठीक है, इसका नाम सी दे दिए, इसमें डालते थे ए का वैल्यू, ए यहाँ आया, ठीक है। ए डालने के बाद क्या किए, बी को यहाँ डालते थे, पहला काम ये, दूसरा काम बी को यहाँ डालते थे, तो यहाँ बी तो आ गया। हमें यहाँ ये डालना था, तो यहाँ ये उठा कर डाल देते थे, ये वाला सी, दूसरा काम, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, दैट्स इट। बट यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन में बोला ट्राई टू डू विथ विदाउट टेम्पोररी वेरिएबल, ये हटा वेरिएबल्स लिखा हुआ था। तो हमें कैसे करना है, बिना टेम्पोररी वेरिएबल के, ये बिना यूज किए भी हमें करना है। ये डब्बा तो ही है, डब्बा दूसरा तो नहीं बनाना, यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ एक वैल्यू है। आई बात समझ, देखो हमारे पास क्या है, दो वैल्यू है, इन्हीं को बस हमें स्वैप कर देना बिना दूसरा वेरिएबल लिए, या बिना किसी दूसरे डब्बे का। तो यहाँ मान लो तुम्हारे पास ए है, बी, तो ए जोड़ बी कुछ आता होगा, अगर उसका जोड़ ए के साथ करो तो ए कैंसिल हो जाता है, पता सेम सेम कैंसिल होता है। आई बात समझ, तो अपने पास एक फंडा है, अगर जोड़ बी के साथ करो तो बी भी कैंसिल हो जाता है। तो तुम्हें देखो ये एक चीज मिल रहा है तुम्हें यहाँ, ए जो है, ए को क्या कर दो, ए जोड़ बी बना दो, ए को क्या बोल दिया हम, देखो बहुत अच्छे से, मतलब मजा आएगा अभी तुम्हें। ए है, बी है, ठीक है, ए को क्या बोल दो, ए जोड़ बी, अभी ए जोड़ बी है, ठीक है। ए का कुछ वैल्यू ले लो तब मजा आएगा तुम्हें, ए का कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, ए इक्वल टू जो यहाँ दिया हुआ है वैसा ही कुछ लेते हैं, 13 और 9, ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 9। दोनों को हम ऐसे पहले निकाल लेते हैं, 13 का कैसे लिखेंगे, देखो 13 के लिए एक चाहिए, और हमें चाहिए, चलो निकाल लेते हैं, इतना क्या, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, ठीक है। 13 के लिए है 1011,
13 इसको बोलते हैं। 9 किसको बोलते हैं? 9 के लिए 2 से 4 बार में 1, 2 से 2 बार में 0, 2 से 1 बार में 0, 1 0 0 1। ठीक है। 8 तो 10, एक सेकेंड, 8 तो 10 की 11 आ रहा है ये तो। 1 1, अच्छा 1 1 0 1 था, 1 1 0 1 है। तभी सोचो गलत क्यों आ रहा। तो यानी कि 8 तो 10, नहीं 8 से 12 1 13, ठीक है। 8 और 1 9, ठीक है। ये दो है। हमें क्या करना है? जोड़ निकालना है। तो ऐसा हम लिखते हैं ए इक्वल टू, अभी ए क्या है अपने पास? ए जोड़ बी कर लिए। ठीक है, अब बी को क्या कर लेंगे? ए जोड़ बी वापस से करेंगे। तो ए जोड़ बी कहने का मतलब ए क्या बन गया? ए जोड़ बी पहले से बन गया, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए जोड़ बी, और ये जोड़ बी है। बी भी खत्म, बी इक्वल टू ए आ गया, एक काम बन गया। बी इक्वल टू ए हो चुका है अभी। अब फिर देखो ए इक्वल टू वापस हम क्या करेंगे? ए जोड़ बी। तो ये क्या बोल देगा? ए क्या है? ए अभी यही है। ए अपना क्या है? ए बन चुका है ए जोड़ बी। ठीक है, और बी क्या बन चुका है? ए। तो ए खत्म, बी बच गया। इतना समझ आ रहा? वापस से देखो तुम। ठीक है, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तुम ऐसे ही देख ले रहे हो। ठीक है, क्या है? ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए को क्या बोल सकते हैं? ए जोड़ बी बोले, कोई दिक्कत अभी नहीं है। बी को क्या बोले? ए जोड़ बी ही बोल रहे हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ए अभी क्या है? ए जोड़ बी है, तो ए की जगह ए जोड़ बी लगती है, फिर इसमें जोड़ बी की है। ठीक है, ये है। और फिर ए क्या है बचा अभी? ए जोड़ बी कर रहे हैं हम। तो ए देखो क्या है? ए क्या है अभी? ए यहाँ है, ए जोड़ बी। और ए तो हो गया। बी क्या है अभी? बी है अपने पास ये वाला। बी देखो, बी में से ये हम हटा सकते हैं बी, तो ये क्या बचा? ए बचा है, तो जोड़ ए कर लो। तो ए हट गया, बी हो गया। तो बी इक्वल टू ए आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया, स्वैप हो गया आराम से। क्या किए हम? पेयर में देना है ना। ए लेते हैं, ए जोड़ बी कर लेते हैं। बी लेते हैं, ए जोड़ बी इसको भी कर लेते हैं। फिर ए लेते हैं, ए जोड़ बी कर लेते हैं, बस। अब पेयर बनाते हैं, पेयर इंट को मैं इंट का ई ले लेते हैं, इसमें मेक पेयर ए और बी ले लो। That's it. रन कर दो इस पी को। इतना ही काम था, रन करते हैं। हो गया, सबमिट कर लेते हैं। चलो आज के लिए हम जितना किए, 1 घंटा 28 मिनट, चलो 1.5 घंटे का वीडियो बन गया। और कुछ करना है हमें? क्या प्रॉब्लम हो गया? स्वैप कर लिए। केथ विथ पोजीशन वाला हम देखे थे, फाइंड पोजीशन। और पोजीशन वाले को मैं तुम्हें शायद ये दिया था, होमवर्क दिया ना। ठीक है, तो पोजीशन तुम निकाल सकते हो, केथ विथ भी निकाल सकते हो। केथ विथ मतलब क्या है? तुम्हें जाना है यहाँ तक। जैसे तुम्हारे पास 7 है, 1 1 1 है, तो तुम्हें ऐसे जाना है। केथ बोलेगा सेकेंड, तो सेकेंड विथ जीरो विथ 1। जीरो से बोलेगा 1 से देख लेना, 2 बोला तो 2 पे 1 है, तो आप 1 आंसर दे देना। तो तुम एंड 1 से करके देखोगे, 1 1 आ रहा था मतलब 1 है, 0 आ रहा था मतलब वहाँ क्या होगा? 0 होगा। डेट्स इट। और क्या बोल सकते हैं? स्वैपिंग हो गया, पावर सेट। एक क्वेश्चन ये है, ये कर लो बस। बाकी तुम्हारा हो गया। एक दो क्वेश्चन मैं बस बोला हूँ खुद करने, यहाँ लिखा हुआ है, ये समझा दूंगा मैं तुम्हें। पावर सेट क्या है? ए बी सी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो पावर सेट किसे बोलते हैं? डेक्सोग्राफी सॉर्टेड ऑर्डर में देना है आंसर। आंसर देखो सॉर्टेड ऑर्डर में देना है, ठीक है। और एज दिया, लेन दिया, पॉसिबल नॉन रिपीटेड सबसीक्वेंस। ओके ओके, तुम्हारे पास ए बी सी है, तुम्हें पावर सेट निकालना है, ठीक है। ए बी सी है, तो तुम्हारा क्या क्या निकल सकता है? एक ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। ए भी बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी बोल सकते हैं, और कुछ बोल सकते हैं क्या? ए बी सी, ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम ये लिए नहीं, कहाँ गया ये? ए सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। पावर सेट मतलब क्या? इसका क्या ऐसा बना सकते हैं, सबसेट टाइप का। ए है, ए ले लिए, बी है, बी ले लिए, सी, फिर दो दो ले लिए, ए भी ले लिए, बी सी ले लिए, फिर ए सी भी ले सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है ए बी सी, 3 3 6 एक साथ, एक इम्पिटी होता है, 2 टू द पावर n होता है, 2 टू द पावर 3, 8 हुआ पावर 6। ये हो गया लास्ट प्रॉब्लम अपने पास, ये करके खत्म करते हैं, डेट्स इट। हमें तारा निकालना है जो जो बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन साइज निकालें, टोटल कितना होगा। हम क्या करें, वन को ऐसा कर रहे हैं, टोटल किसे बोल रहे हैं, वन को लेफ्ट शिफ्ट करें एन के साथ, एन अगर क्या है 3 है, तो वन को लेफ्ट शिफ्ट किए 3 के साथ, यानी कि यही है ना, 2 टू द पावर 3, तो टोटल इतना बनेगा। तो हम ऐसे देखो, फॉर्मूला मुझे पता था लेकिन हम ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अपने पास एक स्ट्रिंग आंसर बना, ठीक है। रिजल्ट बोले या आंसर कुछ भी बोल लो, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, जितना टोटल है उतना तक चलेगा, ठीक है। एक सबसिक्वेंसली है अभी स्ट्रिंग, टेम्पोररी टाइप का, वो अभी इम्पिटी है, ठीक है। जे जीरो से स्टार्ट किया, लास्ट तक जाएगा एन तक, मतलब 1 2 3 ए बी सी के लिए, ठीक है। आई का हम एंड ले रहे हैं किसके साथ, आई मतलब वन का लेफ्ट शिफ्ट मार के जे के साथ, सब्सिक्वेंस में उसे ऐड कर ले रहे हैं, और यहाँ आंसर में डालते हैं, मतलब सब्सिक्वेंस को रिजल्ट में डाल दिया, लास्ट में सॉर्ट करना है, उसके बाद रिजल्ट देना है। तो इसको मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है ये अगर, ठीक है। ए बी सी अपने पास ये रहा, यहाँ रहा ये, यहाँ इसको ऐसे करते हैं, एक सेकेंड से हम समझते हैं, ठीक है। अपने पास स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी, हमें एन है साइज 3, साइज का एन दिया हुआ है, एन निकल गया 3, थोड़ा जूम कर ले छोड़, ठीक है। यहाँ अब हम लिख सकते हैं थोड़ा, एन 3 है, टोटल क्या निकल गया 8, ठीक है, रिजल्ट है। यहाँ रख लेंगे 1 से, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। यहाँ रखते हैं, इसको छोड़ो, ए बी सी छोटा तो यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ क्या है अपने पास, ए बी सी, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आई 1 है, हाँ, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल तक जाएगा, 1 से लेस देन टोटल, यानी कि 1 से 8 तक, टोटल है 8, यानी कि 7 तक जाना चाहिए, 0 से 7, 1 से लेस देन 8, ठीक है। आई यहाँ, ओके डन। स्ट्रिंग है अभी ये, जे 0 है, जे यहाँ, क्या करेंगे आप, आई का एंड लेते हैं, आई जो है बी, एंड बोले हम क्या, 1 को लेफ्ट शिफ्ट किए जे के साथ, यानी कि 1 क्या है, जे क्या है अपना ए, ये है ना, जे मतलब 0 है, सॉरी, 2 के बाद 0 यानी कि 1 के साथ। एक सेकेंड, हम यहाँ ये ले रहे हैं क्या, सब सीक्वेंस में इसका जे ऐड करें, ओके ओके, डेट मीन्स सिंपल सा सोचो, ये हम काम कर रहे हैं इंडेक्स पे, यहाँ है जे, यहाँ 0 पे है, 0 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई है, आई 1 है, एंड लिए किसके साथ, 1 का लेफ्ट शिफ्ट किए हैं 0 के साथ, तो 1 का लेफ्ट शिफ्ट यानी कि 2 × 0 1, 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर में क्या डाल, सब सीक्वेंस में एस का जे 1 वाला डाल दो, यानी कि बी आ गया आंसर में, पहला काम, ठीक है। आई बात समझ, एक सेकेंड, आई क्या है, जे है 0, जे 0 था, आई 1 था, आई 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ बी आ गया, नेक्स्ट क्या है, जे प्लस प्लस हुआ, आगे गया, जे गया यहाँ 1, और 1 का ये अगर 2 हुआ, ठीक है, 2 और 1 का एंड क्या आ जाएगा, 1, और 1 0 ना, 1 0 का एंड, 0 1 2 आएगा, 2 आया, तो ए इसका 2 ले लेंगे, 2 3 सी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी और सी आ गया अलग अलग। उसके बाद गए हम नेक्स्ट, फिर गए आई प्लस, जे प्लस प्लस जे चला गया यहाँ, जे यहाँ आया, उसके बाद क्या होगा, जे यहाँ आया, तो आई है 1, और जे है यहाँ 2 आया, तो 2 2 जब 4 आया, 4 कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़े, आई गया या, ठीक है। आई कितना बार चलेगा, 8 बार चल रहा है हमारा, लेस देन 1 तक। तो आई 8 तक चल रहा है, यानी कि पहला में हमें रखना था ऐसे, BC, आई थिंक, हाँ, ठीक है। ये हम वापस से करके दिखाते हैं तुम्हें, ये रहा, सेट आउट से बेटा, इसे बेटा, से भी, से भी, इसे भी, चलो ना, क्या कर रहे हैं, एन है भी 3, ABC, ठीक है। और क्या है, ये टोटल है 8, ठीक है, रिजल्ट बना लिए। आई 1 से स्टार्ट हो रहा और लेस दिन टोटल तक जा रहा, यानी कि आई 1 से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, और 8 तक जाएगा। J 0 से स्टार्ट हो रहा है, N तक जाएगा, ठीक है। J ये है, और आई 1 है। आई इक्वल टू 1 के लिए देखो, आई इक्वल टू 1 के लिए हम क्या रख रहे हैं, आई इक्वल टू 1 के लिए रखते हैं हम, ये रहा आई 1, N ले रहे हैं वो 1 के साथ, और क्या, J ले रहे हैं। J क्या होगा, J पहले 0 होगा, 0 अगर हुआ तो 2 और 0 1, 1 1 का एंड 1 आया। और इस J पे क्या है, सब सीक्वेंस हम ऐड कर रहे हैं, तो मतलब उसी में ऐड हो रहा, ठीक है। तो ये मतलब बना होगा ऐसा, एक सब स्ट्रिंग बना होगा ऐसे। तो पहला तो इम्पिटी ले लिए, कुछ नहीं लिए, सेकेंड आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहले आया क्या, B आया था, C आया था, ठीक है। वैसे ही आएगा, C आएगा, सॉरी AC आएगा, उसके बाद ABC, A B, फिर अकेले अकेले वाला, आई बात समझ। तो ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो हम सब स्ट्रिंग में रख रहे हैं, ये समझ आया। तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा तुमसे, ठीक है। टोटल निकाल लिया, टोटल तक चल रहा है, सबसे ऐड कर, उसके बाद रिजल्ट पे जाएगा, उसका शॉर्ट करके तब आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये सबमिट भी कर लो, शायद वही क्या होगा, सबमिट करते हैं वापस, ठीक है। तो ये हम कर चुके पूरा 12, ये काम तो कर लो, ठीक है, डन सारा, ठीक है। 1 2 है, होमवर्क को कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि सेव करके रखना है हमें। ये रहा अपना आज का खत्म, टाइम लगा हमें 1 घंटा 37 मिनट। तो बीट मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, बीट मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपने पास देखो मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो हम जो छोड़ के आए थे, नॉर्मल नॉर्मल कुछ चीज़, एक सॉर्टिंग छोड़े थे, वो एक वीडियो में ख़त्म होगा। सॉर्टिंग में 5 सॉर्टिंग करवाऊंगा, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल, मर्ज, क्विक, ठीक है। ये 5 हो गया। उसके बाद ऊप्स पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉर्टिंग खत्म करते हैं, ऊप्स के लिए देखते हैं अभी पढ़े या बाइनरी ट्री वगैरह का बात करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।